Hello everyone. Welcome to Visionary Classes. Here we are with the lecture number 12 on the question and answer discussion for 2019 PYQs. I know your exam is tomorrow, so I will solve all the question by today itself. So you should subscribe our channel and contact us for the latest study material. Let's begin. The first question asks, Beaufort scale is used to classify which of the following meteorological parameters? This is the question. So let us discuss something about the Beaufort scale. So Beaufort scale, an empirical measure that relates the wind velocity to the observed condition at sea or land. तो ये एक तरीके का आपका इंपेरिकल मेजर है कि आपका डिफरेंट साइट के बेसिस पे, क्योंकि आपको भी पता है कि अर्थ का जो सरफेस है दैट इज वेरी अनइवन। कहीं पे पानी है, कहीं पे आपका पेड़ है, कहीं पे कुछ और है। तो सोलर रेडिएशन का इफेक्ट भी उसी तरीके से डिफर करेगा। तो अकॉर्डिंगली आपका विंड की वेलोसिटी भी बदलेगी हर जगह की। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट Beaufort force scale was determined that for value of Beaufort force 0, the speed will be 0 to 1 and there will be a calm air. For 1 means 1 to 5 km per hour speed, the light air will be found. In the 2 Beaufort force scale 6 to 11, light breeze will be found. 3 to 12 to 19 gives gentle breeze, like that. Okay, so आपको याद करने का क्या तरकीब है कि आप फर्स्ट 0 to 1 देख लें, ठीक है, फिर 1 से 5 है, फिर 5 का डिफरेंस आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी लगभग 7 का डिफरेंस है, फिर आपका 8 का डिफरेंस है, फिर आपका लगभग 9 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 10 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 11 का डिफरेंस आ रहा है, फिर आपका 12 का डिफरेंस आएगा, फिर आपका 13 का डिफरेंस आएगा, 14 का डिफरेंस आएगा, 15 का डिफरेंस आएगा, 16 का डिफरेंस आएगा। तो इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। ओके, सो आप पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर 4 पे चलते हैं, फिर आप 5 पे आते हैं, फिर आप धीरे धीरे 6 पे, 7 पे, इस तरीके से इनका डिवीजन हो रखा है। तो ये हमारा बियोफर्ट स्केल है 0 टू लेके 12 तक का, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था बियोफर्ट स्केल इज यूज्ड टू क्लासिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग meteorological parameters. So the answer will be definitely wind velocity. That will definitely be wind velocity. And the next question they are asking, which of the following statement is incorrect? So the thermosphere and stratosphere are characterized by an increase in the temperature with the altitude. Very simple thing. Okay, you know. This is troposphere negative, this is stratosphere, the temperature is increasing, okay. In the mesosphere again decreasing, while in the thermosphere it is increasing again. So in the thermosphere and in the stratosphere the temperature is increasing with the altitude. That is given only, that is given here only, it is increasing, okay. So it is increasing, here it is increasing and here it is increasing, it is very true. Now the second statement tells troposphere and mesosphere are characterized by decrease in the temperature with the altitude. Okay, that is also true because mesosphere and troposphere are seeing decrease in the temperature. The third statement is lowest temperature is found at what? So you can see not at tropopause, the lowest temperature is not at tropopause, it is at mesopause. So the answer will be mesopause. ठीक है, तो we also know that the lapse rate determines the vertical stability of a atmosphere. As we can see, this is a positive lapse rate, here it is the temperature is decreasing, so the lapse rate only determines the vertical stability of a atmosphere. Now the next question asks, above the earth
surface, 90% of the total atmosphere mass is confined within first which kilometer? Okay, which kilometer it is asking. So you can see the density, the density curve. You can see the density curve. Okay, it should be below about what? Here you can see. Okay, after this there is a decreasing trend, and then the density is already decreasing, but most of the mass, you can see, most of the mass of the Earth's atmosphere is within the 20 kilometer. That is approximately 16 kilometer is the right answer. Okay, 16 kilometer is the right answer, but it will be 20 kilometer. Okay, so from the figure itself you can see the density of air is very high within the 20 kilometer. The next question is from the ethical views of an environment. Okay, so which argues that any resource of nature is meant for the human use consumption is termed as. This is the question. Okay, let us discuss the all the ethical views. The first one is the stewardship. The stewardship encourages the fair, just and equal treatment of all shareholders. तो यहाँ पे equal and equitable justice treatment for the shareholder की बात की है, ठीक है, मतलब सभी को बराबर का दर्जा, जो कि एक गुड ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी होती है. अगर बात करें यूटिलिटेरियन की, तो उसमें क्या हो रहा है कि डिटरमाइंस द राइट फ्रॉम रॉन्ग, ठीक है, राइट फ्रॉम रॉन्ग बाय फोकसिंग ऑन द कंसिक्वेंसेस, ठीक है. इसका अर्थ यही है कि आप किसी गलत चीज से भी सही निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन द कंसिक्वेंसेस. ओके, और इसका क्या होता है कि वन दैट विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, इसका काम होता है ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है. तो ये कुछ हद तक आपका फिट बैठेगा कहाँ पे, रिसोर्स ऑफ नेचर इज मेन फॉर ह्यूमन यूज और कंजप्शन, ठीक है. तो आप यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रेटेस्ट गुड के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ह्यूमन कंजप्शन के लिए ही यूज करना है, ग्रेटर नंबर के लिए कर रहा है तो ह्यूमन की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इस तरीके से ये फीट थोड़ा थोड़ा बैठता है, ठीक है. लेकिन अब अगर इशियोसेंट्रिक की बात करें तो इशियोसेंट्रिक व्यूज बोलता है कि इज वन that holds the earth's ecology and ecosystem including its atmosphere, water, land and all life forms, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ रिसोर्स का यूज ह्यूमन के लिए कर देते हैं तो ये इशियोसेंट्रिक तो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सभी को इंक्लूड करना रहता है, ठीक है. स्टीवर्डशिप भी नहीं होगा क्योंकि सारे शेयर होल्डर को इंक्लूड करना होता है. अगर बायोसेंट्रिक की बात करें, रीथिंकिंग ऑफ रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचर, तो नेचर को भी कंसिडर करना होता है. आप सारे के सारे रिसोर्स को सिर्फ यूज नहीं कर सकते, आपको नेचर को कंसिडर करके करना हो, तो बायोसेंट्रिक भी नहीं होगा. तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा वो आपका यूटिलिटेरियन ही होगा. यूटिलिटी से यूटिलिटेरियन का वर्ड आया है. The next question asks which of the following chemicals organic species is or are insoluble in acid or alkali, ठीक है. तो बात करते हैं सारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं. तो पहला ऑप्शन दे रखा है फ्लूविक एसिड, ये सारे के सारे ह्यूमस कंटेंट वाले हैं, ठीक है. तो फ्लूविक एसिड जो होता है वो एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, नेचुरल कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमस उसमें मौजूद होता है, ठीक है. ह्यूमिक एसिड क्या होता है कि ह्यूमिक एसिड जो होता है आपका ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड्स टू एंड हेल्प द प्लांट रूट्स रिसीव वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है. तो ये भी आपका क्या है, सॉल्युबल है, काफी सॉल्युबल है, और ये आपका क्या होता है, ये प्लांट रूट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल करता है. फ्लूविक भी है, ठीक है, फ्लूविक भी ह्यूमस कंटेंट होता है, ठीक है, उसमें भी. लेकिन अगर हम ह्यूमिन की बात करें, ह्यूमिन क्या होता है कि कार्बन बेस्ड माइक्रोमोलिकुलर सब्सटेंसेस, ठीक है. सॉइल केमिस्ट्री में इसकी बात होती है, दिस इज ए कार्बन बेस्ड मैक्रोमोलिकुलर. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ह्यूमिन हैज ए टाइटली बॉन्डेड टू इनऑर्गेनिक सॉइल कोलाइड्स, ठीक है. इसकी बॉन्डिंग जो होती है सॉइल कोलाइड्स के साथ काफी अच्छी होती है, इस वजह से इसका जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है आपके एसिड और अल्कलीज में वो नहीं देखने को मिलता है. तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि दोज आर ह्यूमस हाई ह्यूमस कंटेंट और ये सॉल्युबल है, जबकि ह्यूमिक एसिड भी सॉल्युबल है. तो यहाँ पे तो थर्ड ऑप्शन ही होगा क्योंकि आपका जो
बोथ ह्यूमिक एंड ह्यूमिन दिया है, उसमें ह्यूमिक एसिड इंक्लूड है जो कि आपका सॉल्युबल है, तभी तो वो न्यूट्रिएंट कंटेंट दे पाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर ह्यूमिन होगा, ह्यूमिन, ह्यूमिन इज योर आंसर। ओके, the next question they are asking, the nighttime tropospheric chemistry is dominated by which of the following chemical species। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको याद रखना है कि डे टाइम ट्रोपोस्फेरिक केमिस्ट्री क्या होती है और नाइट टाइम ट्रोपोस्फेरिक केमिस्ट्री क्या होती है। डे टाइम में ऑब्वियसली आप जानते ही हैं कि ओजोन जो है वो आपके लाइट के थ्रू से ब्रेक डाउन होगा, आपका O1D का रेडिकल बनाएगा, ठीक है, प्लस O2 रिलीज होगा वहां से, देन OD1D का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो काफी अच्छा है, जिसके वजह से वो एक्साइटेशन एनर्जी के साथ अपना वाटर के साथ बॉन्ड बनाते हुए OH रेडिकल बनाएगा। ठीक है, तो डे टाइम में आपकी ओजोन मॉलिक्यूल्स की ज्यादा फोटोलाइसिस होती है। ठीक है, तो वो आपको डे टाइम में याद रखना है कि ओजोन इज द मोस्ट डोमिनेंट। इफ यू कंसिडर द नाइट टाइम केमिस्ट्री, तो नाइट टाइम केमिस्ट्री में क्या होता है कि दिन भर का आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो निकला रहता है, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड जो निकला रहता है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करते हुए आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है प्लस आपका O2 बनाता है, तो ये डे में भी हैपन होता है, डे में भी ये रिएक्शन होता है। ठीक है, वही नाइट्रिक एसिड फिर NO2 के साथ रिएक्ट करके N2O5 बनाती है। ठीक है, तो नाइट टाइम केमिस्ट्री में क्या होता है, जबकि ये जो NO3 एंड N2O5 दीज आर सप्रेस्ड ड्यूरिंग द डे, ये डे में नहीं बनते हैं। ठीक है, ये डे में मुश्किल से बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद होना चाहिए, बट आपकी जो NO3 होती है वो ब्रेकडाउन होती है, कहाँ पे, लाइट के थ्रू से ब्रेकडाउन होके NO2 में फिर कन्वर्ट हो जाती है अगर हम डे टाइम की बात करें तो। ठीक है, तो NO2 एंड NO2O5 जो है ये आपके डे टाइम में सप्रेस्ड कंडीशन में रहते हैं, तो आपकी जो नाइट टाइम केमिस्ट्री होती है वो आपकी मोस्टली डोमिनेट हो जाती है फिर नाइट्रेट रेडिकल से। ठीक है, तो ये रेडिकल्स होंगे, नाइट्रेट रेडिकल्स, नॉट नाइट्रेट आयंस, बिकॉज दोज आर नॉट आयंस, दोज आर रेडिकल्स। The next question they're asking, how many years will it take for a population of a country to double if its growth at the rate of 4% per year? This is very simple question, because if you know the formula, it is repeatedly coming in the exam, that doubling time. This is a question of doubling time. As usual, doubling time formula is log 2 upon log 1 plus r into 100, where r is the growth rate. Okay, so this will give rise to 70 upon r. Okay, this is a factorized formula, that is 70 upon r. This is the doubling time formula. So if you use the doubling time formula, you will get the answer 17.3 years. You should remember this formula. The next question there, this is very easy question. It is asking 50 mm of rainfall was recorded during the 30 minutes of a rain in an area of 2.5 hectare. The volume of the water that fell on the area during the rain would be। ठीक है, तो यहाँ पे जहां भी mm है उसको सब मीटर में कन्वर्ट करना है, हेक्टर को भी मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो मीटर mm दिया है तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। दिया है 50, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। हेक्टर को कंसीडर करेंगे तो 10,000 मीटर होता है, तो 2.5 हेक्टर की बात करें तो 25,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 25,000 मीटर स्क्वायर का अगर टोटल वॉल्यूम निकालने जाएं तो टोटल वॉल्यूम में रेनफॉल इन मीटर, एरिया इन मीटर स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपल। तो आपको पता है कि 50 इंटू 10⁻³ है, ठीक है, 2.5 है और 1000 है, तो आप मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका आंसर आ गया, सिंपल है। यहाँ पे एक्चुअली में 30 मिनट्स रिकॉर्ड पे दिया था, 30 मिनट्स का कोई काम नहीं था, 30 मिनट्स वाज नो यूज। ओके, आपको बस इसी चीज को ध्यान रखना था। बच्चे गलती करते हैं 50 इंटू 30 इंटू 2.5 कर देते हैं, जो कि गलत आंसर देगा आपको निकाल के। ठीक है, क्योंकि 30 मिनट के बाद ऑलरेडी रिकॉर्ड वो हो चुका है कि इतना रेनफॉल हुआ है, तो इतना रेनफॉल हुआ तो आप डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इतना डायरेक्टली आप उसको मल्टीप्लाई करिए, दिस इज द आंसर। I hope you understand all the lecture. If you have some doubt, you can comment in the box. Best of luck for tomorrow.